morning everyone. I'm the faculty of PP Educators. Today we are going to start about the 10 shortcuts key in Excel. So let's start. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शॉर्टकट्स हैं वो कौन कौन से हैं. So let's start. First is Control plus N. Control plus N हमारी जो वर्कशीट होती है उस वर्कशीट को हमें न्यू स्टार्ट करने के लिए होती है कि हम अपनी वर्कशीट न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं. किससे? कंट्रोल प्लस एन से. कंट्रोल प्लस ओ हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो पहले से ही हमने जहाँ कहीं पर भी सेव कर रखी है, जैसे सपोज मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, मैं कंट्रोल प्लस ओ करूँगी और मेरी नई वर्कशीट जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है वो ओपन हो जाएगी. थर्ड है कंट्रोल प्लस एस. जो मैंने करंट में जो मैं वर्कबुक बना रही हूँ उस वर्कबुक को मुझे सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस जो है उसे स्टार्ट करना पड़ेगा. कंट्रोल प्लस एस मेरा थर्ड शॉर्टकट की है. नेक्स्ट इज मेरा है कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल प्लस सी इज बेसिकली यूज्ड फॉर कॉपी योर डाटा एंड कंट्रोल प्लस वी इसके साथ ही साथ चलता है. किसके साथ? कंट्रोल प्लस सी के साथ. because we used control plus V to paste the data which we have already copied in by using shortcut control plus C. So control plus V and control plus C. Now we have 5 shortcuts: control plus N, control plus O, control plus S, control plus C and control plus V. Next is control plus X. Control plus X is basically used for cut and copy. Control plus X is cut selected cell and copy it. Next is हमारे पास 6 हो गया. उसके बाद फिर हम करते हैं कंट्रोल प्लस बी. कंट्रोल प्लस बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए. 7th है कंट्रोल प्लस आई इटैलिक यूज करने के लिए, अपने टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल देने के लिए. 8th है अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है. किसी वर्ड को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू करके हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, 8th हो गया. 9th हमारे पास है कंट्रोल प्लस एफ, जिससे हम अपनी शीट में अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना है तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया कंट्रोल प्लस एफ से हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट इज हमारे पास हो सकता है जैसे कि कंट्रोल प्लस पी, जिससे हम क्या करते हैं? अपनी शीट को कि जो भी हमने शीट मेंटेन कर रखी होती है उसकी हम प्रिंट लेते हैं. जो भी हमने शीट मेंटेन कर रखी होती है उसकी हम प्रिंट लेते हैं. तो सपोज जैसे हम स्टार्ट करते हैं आज. नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल प्लस एन. फर्स्ट वी डू कंट्रोल प्लस एन. तो कंट्रोल प्लस एन हमने किया and we find out that we have now 2 sheets. First is book 1 and the other is book 2. We have 2 Excel sheets, so by the using of shortcut control plus N we have 2 sheets. Second is control plus O. Suppose we have a sheet workbook which is already saved in my desktop. So first we have to select it and then control plus O. It is control plus O and now we can see that ये हमारा open हो गया. ठीक है, now we just close it and yes, we just close it. And now third is control plus S. Suppose control plus S, we press control plus S, save as का हमारा पास ऑप्शन आ गया. हमने save as किया and we just want to save it on our desktop. So we select our desktop book 2, the file name of our workbook, and then we just save it. We saved it and now
we can find out it on our desktop. Here we can see that we have a book 2 workbook, which is saved by using control plus S. Now we just open it by control plus O, and then our next shortcut is control plus C. So first we have to write down something so that we can able to copy it. Suppose name, it is Aarti, next is Preeti, next is Priya, next is Rahul, next is uh, Asha, and these are the names. Suppose I just want to save these names from this column to another column, so we have to press first control plus C. First we have to select these names, and then we have to press control plus C shortcut. And now I just want to take this name in column K, so we just select this cell, and then press control plus C, and we now find out that here we have the name Aarti, Preeti, Rahul, Asha and Priya. All names has been copied. So we now we have two another shortcuts, control plus C and control plus V. So let's start. Next is control plus B. Control plus B we can used by control plus V. We can used by control plus B shortcut. We can bold our text. So just let's start. Name, we just select the word which we have to bold it. So control plus B. लेट्स सी, यू कैन सी कि यहाँ पे जो है वो नेम हमारा बोल्ड हो गया है. एंड बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस आई वी कैन ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट पोस्चर. बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस यू वी कैन ऑल्सो यूज द अंडरलाइन of the name word. So these are the three more shortcuts. So now we have 8 shortcuts. First is control plus N, which we are using for creating new workbook. Control plus O for open an existing workbook. Control plus S save the active workbook. Control plus C copy the contents. Control plus V paste the contents, and control plus B for bold the texture. Control plus I for giving the italic style of our texture, and last 8th is control plus U for underlying the text. So अब हमें क्या करना है ना, अब हमारे पास दो और हमारे पास जो है वो शॉर्टकट्स हैं. एक हमारे पास है कंट्रोल ए. अगर मैं कंट्रोल ए करती हूँ तो मेरी पूरी एंटायर शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी. मुझे जो है वो इस तरह से पर्टिकुलर सिलेक्ट करने की नीड नहीं होगी. आई जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस ए और मैंने देखा कि मेरी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो गई है. ठीक है. सो कंट्रोल प्लस ए इज द 9th शॉर्टकट्स. नेक्स्ट इज आर कंट्रोल प्लस एफ. कंट्रोल प्लस एफ बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें हम अपना कोई भी नेम जो हमें सर्च करना है अपनी पूरी शीट में कि वो नेम कहाँ है. सो वी जस्ट राइट डाउन आरती एंड फाइंड नेक्स्ट. सो हेयर यू कैन सी कि आपका जहाँ पे भी आरती है आपका जो है वो सिलेक्टेड हो गया है. सो दीज आर द शॉर्टकट्स इन एक्सेल. 10 शॉर्टकट्स की आई जस्ट डिस्कस अबाउट ओनली 10 शॉर्टकट्स की. बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं एक्सेल में. इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल दीज शॉर्टकट्स, व्यू अनदर वीडियोस. और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इसे जो है वो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यू कैन. इफ़ यू वांट टू सी अनदर वीडियोस, लर्न मोर
Excel points or Excel things, so you can join us, you can contact with BPA